ठीक है, तो today's topic is actually about spelling errors, spelling error detection, spelling error correction, autocorrect. जो भी आपने spelling errors से मुतालिक चीज़ें देखी हैं, today's topic will cover several aspects of spelling errors, जो कि आप लोग शायद समझते रहे हो कि ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, but what happens in the background, we'll look at some of those techniques. These are not really new techniques. आप नई techniques देख सकते हैं, लेकिन these are still techniques which are being used widely in word processors and word editors, and even in your keyboards of your mobile phones. ठीक है, तो जी, everyone can see my screen? Yes, sir. Yes, sir. नजर आ रही है. तो we'll be looking at spelling errors today. So spell checking, as most of you are aware, is part of almost all word editors. So there are separate tasks in checking spelling errors. So there is spelling error detection and spelling error correction. And these are slightly different in the sense that in spelling error detection, you are just saying, okay, let's say there is this word. So this is an error word. There is a spelling error. So yeah. For example, you have ACHEIV, achieve, ACCROSS. And you just have to detect these are spelling errors. In spelling error correction, you either autocorrect, as Google is doing these days, or suggest, as most of the typing tools suggest. Okay? So there are two ways of correcting errors. Now, first looking at spelling error detection. Spelling error detection. So there are two kinds of errors. There are non-word errors, such as which means the misspelled word, let's say X, is not in the dictionary or not in the vocabulary, to be precise, of the language. Say, so for example, in this case, if I wanted to write peace, I actually write PEICE, which is not part of the vocabulary. Then there are real word errors. So, yeah. In which case, the mistyped word, in this case, it was not part of the vocabulary. In this case, this mistyped word is actually a part of the vocabulary. For example, this is an open one example, the piece or ये दूसरा piece नहीं था. For example, let's say I wanted to write peace, लेकिन I wrote peace. So the difference between the two is that this piece
is not in the vocabulary, and in here it is part of the vocabulary. So these two are different errors, and in this case the error is because both the words sound the same. So they have a similar pronunciation but a different spelling. See? In the other case, the two words sound the same, but the thing is one of the words, which is the error word, is not in the dictionary. अच्छा, इसको रिजॉल्व करने के लिए we have the noisy channel model, which is the bulk of the lecture today. Noisy channel model uses the Bayes rule to figure out what is the error or how do we correct the error. See? So we get intuition for this noisy channel model from networks. Okay, in different types of communication networks, when something passes through the network, whether it's wired or wireless, there is some loss. So let's say you're talking through a network and you have a word, you speak a word. So this is the actual word. Let's call it W. And then at the end of the wire, you get a noisy word. Right? So what you get out is a noisy word. And let's call it X. See? So essentially, using this model, we want to be able to model this noisy channel. So the idea is to model the noisy channel. And this is slightly different from the way this is handled in the network or in computer networks. So we have noise correction algorithms, we have distance techniques, जिसके ज़रिए से probabilistic techniques भी होती हैं, जिसके अंदर we incorporate probabilities कि क्या probability एक bit के convert corrupt हो जाने की या lost हो जाने की. So this is slightly different. This is a probabilistic machine learning approach. In this, we are trying to look at this model कि हमारे पास जो noisy channel है, we are trying to create a model for this noisy channel. See? And this model, what it's going to do, it's going to be taking as input the noisy word. So you have the noisy word X, and we expect this model to guess this word W. So actually what we want is we want the actual word out of it. But obviously this is a probabilistic model, so we'll not get the actual word, but we will get a guessed word or a list of words. So we call this guessed word W hat instead of W. Okay, so that's the idea or the intuition behind the noisy channel model. See? So this M is essentially probabilistic model. Okay? This M that you're looking at is a probabilistic model, and let me label it as such. Okay? So we have W hat, and this would be the guessed word. So this is a probabilistic model. And let me write it down. Okay, given a noisy word X, M guesses W hat.
ठीक है, or tries to guess the word w hat. That's what we get. Or the formula for this noisy channel model is essentially w hat is equal to argmax, the probability of the word w given the noisy word x. ठीक है, so we have a noisy word x, and what we want is what is the probability, what is the highest probability word from the dictionary. So this w is in our vocabulary, पूरी dictionary ले ली आपने और आपने कहा कि किस word पे इस x की probability given the word x इस word की probability सबसे ज्यादा होगी. Now the thing is with conditional probabilities, sometimes certain conditional probabilities are easier to calculate and some others are not so. तो हम यहाँ पे Bayes rule use करेंगे that converts one conditional probability into the other. तो Bayes rule कुछ ऐसा है, the probability of B given A can be converted into the probability of A given B, and that would be equal to the multiple of the probability of B and divided by the probability of A. Sorry, थोड़ा सा मेरा वायर इशू कर रहा था. And if you have any questions, do go ahead and ask. So this is the probability of A in the denominator. Right? So given this Bayes rule, we can convert this probability here, and the formula would be argmax w in our vocabulary. We can say this is the probability of the error given the real word multiplied by the probability of the real word divided by the probability of the error. सही. So you can see we many a times we would not know कि ये यहाँ पे कि भाई what is the error, but in here we have turned over the conditional probability and we have brought the error word into the probabilistic side. This piece we can calculate using our unigram model, and this lower piece, what is the probability of this error, we can just eliminate. See, we can just eliminate because of argmax. So this would actually become argmax, the probability of the misspelled word given w multiplied by the probability of w, see? Where w is in, तो इसको डिनोमिनेटर में से निकाल ही दिया हमने probability of x. इसकी वजह ये कि सारे के सारे जो computations हो रही हैं for comparison purposes in argmax, उनमें सब में p of x सेम ही है. अच्छा, now a little bit of explanation of what this formula is covering. So we are trying to maximize this value, and there are two pieces. जब आप multiple को maximize कर रहे होते हैं, you're trying to maximize both pieces. So this first piece is actually the likelihood probability. Okay, what is the probability of this error
given the right word. See? And this is called the prior. कि जो वर्ड W है इसकी probability of appearing in the language वो कितनी होती है. तो this we can get from the language model. तो यूनिग्राम language model में से ये आ जाएगी. और this likelihood probability is also known as the channel model probability. ठीक है कि how likely is this misspelling X of W is. Let me write that down. How likely is this misspelling X of W is. So that's what this is computing. See? So I'll answer some of the questions that you may have in your mind uh, with an example. So the example that I have of this channel model probability calculation is that, let's say okay, you get an error word res. Now this word is not in English. So once you encounter this word in the word editor, what would you do? You would go and generate candidate words. And one way of doing that is words with similar spelling. And you, from this, you get a set of words that have the minimum edit distance with this minimum edit. It should be minimum edit distance with this word X. Right? तो वो वर्ड्स आपने लिस्ट कर लिए. तो दिस इज द बिगिनिंग. तो what do? We take the Levenstein's edit distance. So we generate candidate words. Let's generate candidate words. Generate candidate words. See? अच्छा, edit distance में हमने जो operations लिए हुए थे, they were insert, delete, substitute. अब हम यहाँ पे एक ट्रांसपोजिशन भी ऐड कर लेते हैं विद द कॉस्ट ऑफ 1. ट्रांसपोजिशन ये होता है कि यू हैव लेट्स से एक्स वाई एंड यू एक्चुअली यू रोट इट एज वाई एक्स. ट्रांसपोज हो गया. तो यहाँ पे कैंडिडेट वर्ड्स जनरेट कर रहे हैं फॉर दिस वर्ड एक्रेस. So let me do this. So you have candidate. Let me draw a table. Candidate word. कौन सा ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से ये हुआ है. लेटर कौन सा है जिस पे वो ऑपरेशन हुआ है. एंड एडिट डिस्टेंस. And let's call it the Levenstein's edit distance. तो इसके लिए जो कैंडिडेट वर्ड हमारे पास वर्ड है acres, which is our error word या misspelled word. कैंडिडेट वर्ड्स हमारे पास आ गए, let's suppose actress. और हमने इस तरह से किया कि जो डिक्शनरी हमारे पास मिनिमम एडिट डिस्टेंस के साथ आ रहे हैं कि इसका एडिट डिस्टेंस इस मिसस्पेल्ड वर्ड के साथ 1 है और ऑपरेशन इज डिलीट एंड कि अगर इसमें से टी डिलीट हो जाए इट वुड बिकम दिस एरर वर्ड. तो दूसरा वर्ड is an insert of this character A, edit distance 1. एग्जाम्पल के तौर पे मैं 3-4 और वर्ड दे देता हूँ. लेट्स से केरेस
जो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इट्स एन एक्चुअल वर्ड। यहाँ पे ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन हुआ है ऑफ सी ए, वो ए सी बन गया है। एक ट्रांसपोजिशन हुई है तो द डिस्टेंस इज 1। वेरी कॉमनली यूज वर्ड। सब्स्टिट्यूट हो गया, लेट से सब लिख देता हूँ इसको, सी विद एन आर, और सब्स्टिट्यूट की कॉस्ट हमने कहा था 2 होगी लेवेंस्टीन्स में। एक्ट अक्रॉस, लेट से एक और वर्ड है, इसमें भी सब्स्टिट्यूट हो गया, ए सी आर, हाँ, ओ की जगह ई सब्स्टिट्यूट हो गया तो ये एरर वर्ड बन गया, एंड देयर इज वन सब्स्टिट्यूट। तो लेट्स से कि ये हमारे पास हमने एक लिस्ट जनरेट कर ली। नीड नॉट बी दिस लॉन्ग और दिस शॉर्ट, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो इफ यू रिकॉल, हमें अपने चैनल मॉडल यानी नॉइजी चैनल के लिए, इफ यू वांट टू गेस द वर्ड, what we wanted is two things. One is the channel is basically what we're getting from the language model. देख लिया, लेट सपोज कि आपने यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल बनाया, यू गेट द प्रोबेबिलिटीज फॉर ऑल ऑफ दीज, और मैं यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटीज लिख देता हूँ, अज्यूमिंग कि हमने लैंग्वेज मॉडल से निकाली। लेट सपोज कि एक्ट्रेस की प्रोबेबिलिटी 0.0023 है। सर जी, सर जी जी जी। सर जी, ये जो आपने एक्ट्रेस लिखा है, इसमें ये ऑपरेशन इंसर्शन का नहीं हुआ? अच्छा, ये इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये रिमेंबर के ये करेक्ट वर्ड है, इसको हमने सोर्स लिया और ये टारगेट है एक्स, ठीक है सर, हम ठीक है। इधर से इधर जा रहे हैं, इसलिए डिलीट है। आप इनवर्स में सोच रहे हैं थोड़ा सा। तो अच्छा, ठीक सर, दूसरा वर्ड क्रेस है। क्रेस इज नॉट अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड, तो आपका लैंग्वेज मॉडल कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी देगा, 0.0004 चार जीरोस लगा दिए मैंने, 5। केरेस भी इतना ज्यादा नहीं, बल्कि ये तो बहुत ही ज्यादा अनकॉमन सा वर्ड है, 0.00016। लेट्स से एक्सेस इज अ फेयरली कॉमन वर्ड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली हाई होगी। अक्रॉस इज इवन मोर कॉमन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.029 है। लेट्स सपोज कि मैंने ये प्रोबेबिलिटीज अपने यूनिग्राम मॉडल से बना ली, जिस तरह हमने पिछली क्लासेस में ये लैंग्वेज मॉडलिंग सीखी, राइट। तो एक काम हो गया हमारा, हमारे इस आर्ग मैक्स में, व्हेन वी आर ट्राइंग टू, अच्छा यहाँ पे एक और काम किया हमने कि जो हमारी लिस्ट है जिस पे आर्ग मैक्स निकालने, हमने इसको ये कैंडिडेट वर्ड्स पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया रादर देन द इंटायर वोकैबुलरी। तो कैंडिडेट वर्ड्स की लिस्ट निकाली, और दैट वी गेट फ्रॉम द मिनिमम एडिट डिस्टेंस, वरना उसूलन तो पूरी वोकैबुलरी पे देखना था। नाउ वी जस्ट लुकिंग एट 5 comparisons in this case, see, for this error x, ठीक है। तो जो दूसरी चीज रह गई हमारे पास, इट्स दिस चैनल मॉडल प्रोबेबिलिटी। ये कैसे कैलकुलेट करनी है हम? तो नेक्स्ट चैलेंज ये हमारा कि हाउ डू वी कैलकुलेट द चैनल मॉडल प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेटिंग द channel model probability, which is P of x given w. In our case, we will be calculating, जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमारा x है एक्ट्रेस, एंड वी हैव डिफरेंट w's, यानी एक्ट्रेस भी है, ये भी कैलकुलेट करना है हमने। हमने करना है एक्ट्रेस के लिए क्रेस एंड सो फोर्थ, जो हमने 5 वर्ड्स निकाले, सबके लिए हमने ये चैनल मॉडल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अब द थिंग इज, इफ यू लुक एट दिस, इट्स नॉट वेरी इंटुइटिव कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन नॉइजी चैनल मॉडल जिन्होंने प्रपोज किया था इन 1996, उन्होंने निकाला। उन्होंने कहा कि यू कैन एक्चुअली
you can estimate this probability just by the probability of the error. यानी कि यहाँ पे अगर डिलीशन हुई है, दिस वर्ड इसके अंदर से क्या हुआ है कि टी डिलीट हो गया एंड दैट मेड दिस वर्ड, तो यू कैन से कि ये सी के बाद टी डिलीट हो गया, तो देयर इज दिस सी, नाउ वी हैव सी टी। तो आप ऐसा करें कि गिवन के सी टी था डिलीट होके सी बन गया, तो यू कैलकुलेट जस्ट दिस पीस। सिमिलरली यहाँ पे अगर ये इंसर्ट हुआ है और यहाँ पे यू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी, और यहाँ वो सिर्फ सी बन गया तो यहाँ पे इंसर्ट हो गया एंड सो फोर्थ। इस तरह से आप ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लें। तो दिस मेक्स थिंग्स मच इजियर, मच इजियर एक्चुअली। और फिर वहां पे ये एडिट्स काम आ जाते हैं कि यू आर गोइंग फ्रॉम द वर्ड लेवल to the character level, and this is a very important technique in NLP कि instead of thinking at the word level you start thinking at the character level models पे आप चले जाते हैं। तो खैर यहाँ पे हम probability of edit कैसे निकालेंगे, how do we actually और how we actually compute कि इसकी probability क्या हो सकती है, तो हम उसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। तो फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिट ऑफ डिफरेंट एडिट्स, क्योंकि हम लेविनस्टीन्स एडिट डिस्टेंस ले रहे हैं, तो हम कहते हैं कि लेट्स से द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिलीट, और उसको कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं यू ई, टू कैरेक्टर्स यू एंड ई, और हुआ ये है कि दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिट would count the, sorry, not count, but compute the probability of times कि UE, दो characters, was typed erroneously as just U, तो वो delete हो गया basically, right? Similarly, the probability of insert, और UE लिखते हैं उसको थोड़ा सा सेम नोटेशन रखने के लिए, this would be the probability of U typed as UE। सही, तो यहाँ इंसर्ट हुआ, यहाँ डिलीट हो गया। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन का देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन UE would be the probability of U typed as E। इसी तरह ट्रांसपोजिशन हो गया UE where UE typed as EU। सही, तो हम ये चार मुख्तलिफ तरीकों से ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हम इवेंचुअली विल बी एबल टू कैलकुलेट सच प्रोबेबिलिटीज कि ये एडिट्स जो हुई हैं इन दीज वर्ड्स वो कैसे कंप्यूट की जा सकती हैं। सही, so for this, for computing this, we have a matrix structure। और मैं आपको बताता हूं कि ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कैसे होंगी। और लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ द सब्स्टिट्यूट, कि ये कैसे, हाउ डू वी एस्टिमेट कि भाई यू कितनी दफा ई से सब्स्टिट्यूट हो गया। वो वर्ड एडिटर्स ऐसे करते हैं कि दे मेंटेन दीज मेट्रिसेस। तो लेट्स कॉल दिस मैट्रिक्स M substitute, or this matrix looks somewhat like this। तो दिस मैट्रिक्स, उसके अंदर एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी कैरेक्टर्स लिखे हुए ABCDEFGHI एंड सो फोर्थ, और वाई एक्सिस पे भी ABCDEFGHI। एंड दिस मैट्रिक्स हैज बीन पॉपुलेटेड। और वो कैसे पॉपुलेट होता है मैं आपको बताता हूँ, वो ऐसे पॉपुलेट होता है। एंड लेट्स से कि दिस substitute matrix is UE, and these are the U characters and these are the E characters। और होता ये
कि लेट सपोज कि आप लिख रहे थे, आप अपने वर्ड एडिटर में टाइप कर रहे थे, आप टाइप कर रहे थे आप ए टाइप करना चाह रहे थे लेकिन आपने बी टाइप कर दिया। फिर आपने क्या किया, आपने इसको काटा, अपने कर्सर को पीछे लेके गए, बैक स्पेस दबाया और फिर ए टाइप कर दिया। तो क्या होता है, जो भी यहाँ पे नंबर है, लेट से कोई नंबर नहीं था, उसने कर दिया यहाँ 1, के दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स कि ए वॉज एक्चुअली टाइप्ड एज बी, और फिर वो करेक्ट किया गया। सही है। इसी तरह लेट सपोज के सी जो है वो 7 टाइम्स टाइप हो गया, डी ए की जगह 1 टाइम, ई बहुत ज्यादा टाइप हुआ 398 टाइम्स शायद, और या एस भी बहुत ज्यादा टाइप होगा कि इसकी कीबोर्ड में डिस्टेंस कम है ए के साथ, एफ जो है वो 0 टाइम्स टाइप हुआ एंड सो फोर्थ। सही। ए और ए तो एक मतलब सेम ही वर्ड है। तो इसी तरह बी, ये जो है बी की जगह ए टाइप हो गया, दैट वुड कम हेयर, लेट्स से 2 टाइम्स। सी टाइप हो गया 3 400, एंड लेट्स से कि इस तरह से ये मैट्रिक्स पॉपुलेट हुआ हुआ है। तो लेट मी राइट दिस डाउन just so that you can make a note. Okay, what does this 398 mean? This 398 is the number of times E was typed instead of A. तो सब्सिट्यूट हो गया बेसिकली। इसी तरह कोई भी पोजीशन होगी, यानी लेट्स से कि यू हैव दिस पोजीशन डी एंड आई, इसके अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है, लेट्स से लिखा हुआ है 93, तो दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स D was typed instead of I. सही है। तो दिस इज दैट नंबर। अच्छा, अब हम निकालना चाहते हैं ये प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी यहां तो हो गए काउंट, और ये जैसे जैसे आप लोग अपने एडिटर्स इस्तेमाल करते जाते हैं, आपका ये अपडेट करता रहता है। यानी गूगल का आप कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड्रॉइड का, उसके पीछे ये चारों मेट्रिसेस बने हुए हैं। आपके पास एम सब है, एम इंसर्ट है, एम डिलीट है, एम ट्रांसपोज है। ये अपडेट होते जाते हैं और फिर गूगल इनको लॉग करके अपने हेडक्वार्टर पे अपलोड कर देता है। फिर आप सारों के कंबाइन करके इट क्रिएट्स दिस कंबाइंड मैट्रिक्स ऑफ एडिट एरर्स, और फिर वो पुश भी कर देता है कि ऐसा नहीं होता कि आप जीरो से स्टार्ट ले रहे हैं। इनिशियली आप जीरो से स्टार्ट लेंगे, फिर ऐड होते जाएगा एंड सो फोर्थ। फिर वो सबको पुश भी कर देता है कि ये एरर्स ज्यादा है। तो यू हैव दीज 4 मैट्रिसेस व्हिच आर नॉट नॉट वेरी लार्ज। अगर आप स्पेस कैरेक्टर को भी बीच में डाल लें तो 27 by 27 का मैट्रिक्स है, बहुत बड़े मैट्रिसेस नहीं है। लेकिन असल में आपने कैलकुलेट करना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सब्स्टिट्यूट। सही है, ऑफ दिस सब्स्टिट्यूट यू ई, वो कुछ ऐसे कैलकुलेट करेंगे। लेट से, सॉरी यहाँ पे मैंने एग्जांपल यू ई ले लिया, यहाँ पे लेट से डी एंड आई का ले लेते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे दिया था। तो यू हैव 93 एंड व्हाट यू डिवाइडेड बाय, आप देखेंगे कि दोनों तरफ एडिशन हो सकती है कि कितनी, एक तो ये कि कितनी दफा डी की जगह आई आ गया था, देन यू आर एक्चुअली डिवाइडिंग इट बाय आई कितनी दफा आता है टोटल। तो दैट वुड बी द समेशन कि आई को सही जगह में कितनी दफा आना चाहिए था। लेट से आपने सारे जितने नंबर्स हैं सबको ऐड कर लिए यहाँ पे, एंड यू गेट 953। तो यू हैव दिस नंबर, और यहाँ आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 0.09 समथिंग।
सही है सर जी। ये जो 953 है, ये हम्म, आई के कॉलम का सम है ना? आई के कॉलम में जितनी जी वैल्यूज हैं। जी, आई के कॉलम का सम है। ठीक है। सही, बिल्कुल ये हुआ हुआ है। तो आई कितनी दफा आना चाहिए था जिसकी जगह कुछ और सब्स्टिट्यूट हो गया। तो इसी तरह से ये चारों और मैट्रिसेस भी बने हुए हैं। इंसर्ट का मैट्रिक्स है, डिलीट का मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है, एंड यू कैन कैलकुलेट दीज प्रोबेबिलिटीज अकॉर्डिंगली। सब में कुछ इसी तरह का काम हो रहा है आसपास का। सही। तो मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं कि फ्रॉम द कंफ्यूजन मैट्रिक्स matrices m of some edit, we can generate probabilities for our channel model. सही। और वो probabilities कुछ इस तरह से कैलकुलेटिंग है। probability of some error x given the right word w, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया into the probability of let's say some letter L, और नहीं सॉरी, इसको मैं यहाँ नहीं करता। यहाँ समझे आपने कि एडिट कर लिया और उसके बाद इफ इट्स ए डिलीट, इफ इट्स ए डिलीट, तो फिर आप उस मैट्रिक्स में गए, डिलीट मैट्रिक्स में, और वहां पे देखा W, या मुझे लेटर ही लिखना चाहिए, लेटर I-1 एंड लेटर I, इसमें से डिलीट हुआ। और एंड द काउंट, ये टोटल काउंट है जो मैंने नीचे ऐड किया था ऑफ WI-1। सही है, ये डिलीट है। और इसी तरह इफ इंसर्ट, तो यू गो इनटू द इंसर्ट मैट्रिक्स, आप कहते हैं WI-1 x ऑफ I, सॉरी W कर दिया मैंने, ये L होना चाहिए, लेटर, और ये x भी एक लेटर है, डिवाइड बाय द काउंट ऑफ L ऑफ I-1, ये लेटर है। तो अगर इफ सब्स्टिट्यूट, तो यू गो इनटू द सब्स्टिट्यूट मैट्रिक्स, वहां पे देखते हैं कि कौन सा नया लेटर सब्स्टिट्यूट होके आ गया, और यू गेट द काउंट जिस तरह से हमने वहां पे किया था, L ऑफ I+1। और इसी तरह ट्रांसपोज, F ट्रांसपोज। तो ये इस तरह से accumulated फंक्शन बन गया आपका, जो डिसकंटिन्यूस है, लेकिन इट्स गिविंग यू द वे हाउ टू कंप्यूट दीज प्रोबेबिलिटीज। तो फॉर एग्जांपल लेट मी हाईलाइट दिस के if it's an insert, what is the top value giving you? It is the number of times letter x of I was inserted after a particular letter L of I-1, ठीक है? And this is the number of times L of I-1 was involved in an error। सही है? तो वो उसका डिनोमिनेटर है, जिस तरह से मैंने थोड़ी सी कॉम्पिटिशन आपको करके दिखाई थी। अच्छा, there are multiple ways, there are multiple different ways of doing this. They're slightly different, लेकिन they are trying to do the same thing। ठीक है, तो let me go back to the example। सही,
of computing channel model probabilities or computing the entire channel model actually. तो आपको याद होगा मैंने कैंडिडेट वर्ड सिखाए थे आपको, कैंडिडेट्स, और इनको सेट सी कर लेते हैं। फिर ऑपरेशन क्या हुआ, किस लेटर पे, किस तरह से, देन वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी और वी एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एरर गिवन दिस पर्टिकुलर वर्ड। तो ये हो गई आपकी चैनल मॉडल प्रोबेबिलिटी। और हम देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं मैं। ये एक्ट्रेस था, दीज आर आवर कैंडिडेट वर्ड्स। हमारा जो एरर वर्ड था एक्स, दैट वाज एक्रेस। फिर हमारे कैंडिडेट वर्ड जो हमने लेवेंस्टीन्स डिस्टेंस कैलकुलेट किए, मुझे डिस्टेंस लिखना चाहिए, लेवेंस एल डी। तो ये हो गए एक्ट्रेस, क्रेस, केरेस, एक्सेस एंड अक्रॉस। ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन था डिलीट ऑफ टी, तो मैंने उसको थोड़ा सा इस तरह से लिखा है सी टी। Then there is an insert a hash at the beginning, transposition है of AC to CA, इसी तरह यहाँ पे substitute है R और C, और यहाँ भी substitute है of and E for the O। अच्छा, edit distance इनका मैं लेवेंस्टीन्स एडिट डिस्टेंस जो है इसका 1, इसका 1, इसका भी 1 था, इसका 2 था, 2 था बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूट, लेकिन एडिट ऑपरेशन 1 ही है। अच्छा, लेट्स से कि मैं अपने इस फॉर्मूले से, ये जो मैंने चैनल मॉडल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकाला है, इससे मैं इनके चैनल मॉडल प्रोबेबिलिटीज निकाल लेता हूँ। एंड लेट्स से कि दे आर 0.0017, 0.0000014, 0.000164, 0.000209, और यहाँ पे हो गया 0.00093। क्योंकि छोटे छोटे ऐसे नंबर्स होंगे, आपके मैट्रिसेस काफी बड़े बड़े हो जाते हैं। फिर अब मेरे पास इसके अलावा जो मैंने पहले यूनिग्राम मॉडल में से निकाली थी प्रोबेबिलिटीज, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 0.0023, 0.00005, 0.00016, 0.0091, 0.029। तो लेट मी रिपीट अगेन कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये प्रोबेबिलिटीज आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आई हैं, ये लैंग्वेज मॉडल में से मैंने निकाली। मैंने को बहुत बड़ी कॉर्पस लेके उसका लैंग्वेज मॉडल बना लिया, एक्ट्रेस की प्रोबेबिलिटी निकाली एज द यूनिग्राम, तो वो ये निकल आई। ये प्रोबेबिलिटीज जो मैंने कैलकुलेट की, तो ये प्रोबेबिलिटीज लैंग्वेज मॉडल में से आ गई। ये प्रोबेबिलिटीज मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले से एज एन एग्जाम्पल कैलकुलेट कर ली। पूरा आपको दिखाने का मेरे पास वो नहीं है कि पूरा मैट्रिक्स दिखाऊं, बट यू कैन कंप्यूट दीज। अच्छा, नाउ what we want for each one of these values is to compute the likelihood multiplied by the prior. So this is the likelihood channel model probability multiplied by the prior. अच्छा, ये probabilities मेरे पास नहीं लिखी हुई हैं, आप लोग भी मेरे साथ कैलकुलेट कर लें। मैं नीचे से करता हूँ, तो 0.029 multiplied by 0.00093 turns out to be a 2.67 multiplied by 10 to the minus 5. उसके बाद 0.0091 multiplied by 0.000209 is 1.9
multiplied by 10 to the minus 6. KRS की probability 0.000, ये 4 zeros, 16 multiplied by 0.000164, ये हो गई 2.6 multiplied by 10 to the minus 9. इसी तरह क्रेस की प्रोबेबिलिटी निकाली 0.00005 multiplied by 0.000, ये तो 5 zeros है, 14, तो that's 7 times 10 to the minus 11. और ये एक्ट्रेस की प्रोबेबिलिटी इसी तरह से कैलकुलेट की मैंने, तो दिस वुड टर्न आउट टू बी 0.0023 multiplied by 0.0017 would be 3.9 multiplied by 10 to the minus 6. ठीक है, तो ये मेरे पास सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई जो मल्टीप्लाई कर दी मैंने इन दोनों वैल्यूज को, ये मल्टीप्लाई किया तो वी गेट दिस प्रोबेबिलिटी. अच्छा, उसके बाद किया हुआ ये कि वी टेक ऑल दिस एंड वी अप्लाई argmax for the word in the candidate set. यानी कि हमने क्या किया कि इन सारों की मैक्सिमम वैल्यू निकाली which turns out to be this value. सही, तो this is the max, और फिर जो वर्ड यहां पे आ रहा है वो हमने दे दिया. तो इसेंशियली हो रहा ये है कि वी हैव दिस चैनल मॉडल जिसको हमने दिया एक्रेस which is the error word. तो इसने हमको गेस करके दिया कि perhaps you are trying to write across. सही है, तो उसकी वजह ये है कि उसको जो प्रोबेबिलिटी मिल रही है मैक्सिमम वो अक्रॉस पे मिल रही है. अच्छा, जरूरी नहीं है वो हुआ इस तरह से. मैंने शुरू में शायद एक बात बताई थी, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने argmax में क्या किया है कि यू आर टेकिंग द argmax ऑफ ऑल दीज probabilities. So let's say 3.9 times 10 to the minus 6 divided by p of x, जो कि मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया और मैंने कहा था कि इसको इग्नोर कर सकते हैं. उसकी इग्नोर करने की वजह यही है कि मैंने ऊपर की चीज जो कैलकुलेट की, क्योंकि argmax कुछ ऐसा था, this was argmax of p of x given w multiplied by the probability of w divided by the probability of the error x. सही है, and we are trying to get w from the candidate set. तो यहाँ पे ये हुआ है कि we are trying to figure out the max of these values. 7 times 10 to the minus 11 divided by p of x, 2.6 times 10 to the minus 9 divided by p of x, and so forth. एंड इफ यू नोट कि जब सारी वैल्यूज p ऑफ x से ही डिवाइड हो रही हैं तो इनका मैक्स, और अगर हम p ऑफ x को इग्नोर कर दें तो इनका मैक्स दे वुड बी द सेम, विच इज द लास्ट वन, ये वाली, यू गेट 10 टू द minus 5. इसलिए हमें p ऑफ x को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो दैट्स द चैनल मॉडल. And if there are any questions, I'm willing to answer them now about the channel model and how the noisy channel model works. नहीं तो चले, good. Then we move on to our next topic, which is real word spelling errors. तो up till now we were looking at non-word spelling errors कि वो हमने पकड़ लिया आराम से. अब हम डिटेक्ट कैसे करें
कि रियल वर्ड स्पेलिंग एरर आ जाए, विच मीन्स के द मिसस्पेल्ड वर्ड, लेट्स से x is actually a part of the vocabulary. अब क्या करें? फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश के अंदर जो वर्ड पीस था, यू मिसस्पेल्ड इट एज पीस, सही? या आपने बाय लिखना था और गलती से बी टाइप हो गया, या टू लिखना था और टू कर दिया, या टू कर दिया. So how do we actually detect these? One of the ways is to look at the language model. Okay? So how do actual solutions work? तो वही करते हैं कि they generate a set of candidate words for each word that you type. जैसे आपने एडिटर्स में देखा, आपने सही वर्ड टाइप किया है तब भी वो आपको कुछ कैंडिडेट वर्ड देता है जिसके अंदर वो वर्ड भी होता है, वर्ड इटसेल्फ. जैसे मैं एडिटर्स अभी टाइपिंग करता हूँ तो 3 वर्ड्स मुझे दिखाता है मेरा फोन, जिसमें वो वर्ड भी होता है जो मैंने लिखा होता है. वर्ड्स विद सिंगल लेटर एडिट्स, यानी एडिट डिस्टेंस 1 के साथ भी होता है. और कभी कभी वो वर्ड्स जो प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं, दीज आर कॉल्ड होमोफोन्स, तो वो भी नजर आ जाते हैं. तो अब इनमें से पिक कौन सा करना है वो हम देख लेते हैं. लेकिन इफ यू आर ट्राइंग टू करेक्ट द एंटायर सीक्वेंस, उसमें लैंग्वेज मॉडलिंग आ जाती है. वो कैसे इस्तेमाल होती है वो भी आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ. वो ऐसे, लेट सपोज कंसिडर दैट you are writing a sentence, and let's say S is that sentence which is comprised of word 1, word 2, all the way to word N. अब क्या करेंगे आप कहते हैं मैं हर वर्ड को चेक करूं कि इट्स अ पॉसिबल एरर, राइट? तो आप क्या करेंगे कि हर वर्ड के लिए कैंडिडेट्स जनरेट करेंगे. वर्ड 1 के लिए कैंडिडेट जनरेट किया आपने, विच माइट बी वर्ड 1 itself, वर्ड 1 की कोई वेरिएशन, वर्ड 1 की कोई दूसरी वेरिएशन एंड सो फोर्थ, कैंडिडेट जनरेट कर लिए. तो इसी तरह आपने कैंडिडेट जनरेट किए फॉर वर्ड 2, वर्ड 2 प्राइम, वर्ड 2 प्राइम प्राइम एंड सो फोर्थ. इसी तरह आपने कैंडिडेट्स जनरेट कर लिए. लेट्स से सारे वर्ड्स के आपने कैंडिडेट्स जनरेट कर लिए ऑफ वर्ड एन, और वर्ड एन के कैंडिडेट्स होंगे वर्ड एन इटसेल्फ, वर्ड एन की कोई वेरिएशन, वर्ड एन की कोई दूसरी वेरिएशन एंड सो फोर्थ. ठीक है, आपने ये सारे वर्ड जनरेट कर लिए. अब ये है कि हाउ डू फिगर आउट कि कौन सा वाला सीक्वेंस इन वर्ड्स का वो सबसे ज्यादा प्रोबेबल है. और उसके लिए आसान हल यही है कि आपने अपना लैंग्वेज मॉडल यूज किया. यूज लैंग्वेज मॉडल. इन रियलिटी ये नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कहा कि टू ऑफ दीव कुछ, गलत भी टाइप कर दी, सही है. फिर आप ये टाइप कर रहे हैं, पीछे बैकएंड पे हो रहा है कि हर वर्ड के लिए कैंडिडेट वर्ड्स जनरेट हो रहे हैं. तो टू के लिए कैंडिडेट वर्ड जनरेट हुए, टू भी जनरेट हुआ, टू जनरेट हुआ, टू कुछ और भी जनरेट हो गए. इसी तरह ऑफ के लिए भी जनरेट हुए. ऑफ इज वन वर्ड, ऑफ, ऑन, और त्यू के लिए भी वर्ड जनरेट हो गए. दी, सॉरी, त्यू, दी, देम, थ्रू एंड सो फोर्थ. ये सारे कैंडिडेट्स जनरेट हो गए.
फिर आपने इनको कनेक्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। सही है, हर हर वर्ड की एक वर्टेक्स बना ली, एंड यू कनेक्ट देम इन अ सीक्वेंशियल मल्टीपार्टाइट ग्राफ कह लें आप इसे, लेकिन ये हर लेवल पे बाईपार्टाइट है। तो इस तरह से कनेक्शंस हैं ये, कि हर लेवल पे हर वर्ड अगले वाले वर्ड से कनेक्टेड है। तो ऑफ इज कनेक्टेड विद यू, द, देम, थ्रू, एंड दिस ऑफ is similarly connected to all the candidate words for the next possible word। ठीक, अब उसके बाद आपने देखना ये है कि कौन सा सीक्वेंस मोड लाइकली है। ये वाला सीक्वेंस मोड लाइकली है, या ये वाला सीक्वेंस मोड लाइकली है, कौन सा सीक्वेंस। तो उसके लिए यू यूज द प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल। तो आप कहते हैं ये वाला सीक्वेंस इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, ये वाला सीक्वेंस इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, एंड देन यू टेक द आर्गमैक्स से कि इस सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो बेसिकली यू आर कंप्यूटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ दीज सीक्वेंसेस, लेट्स से वर्ड 1 की प्राइम, वर्ड 2 इटसेल्फ, वर्ड 3 प्राइम प्राइम एंड सो फोर्थ। आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, यू से कि दिस इज व्हाट्स गिविंग द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज प्रोबब्ली द राइट सीक्वेंस। The thing with this is that the computational complexity is n to the m, where n is the length of the sequence and m is the average candidate set length। सही। तो इन प्रैक्टिस होता ये कि ये तो बहुत ही यानी एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी है आपके पास। तो इन प्रैक्टिस you take one candidate word from the sentence, you take one suspect word and you say कि अच्छा इसके candidates में generate कर लेता हूँ, and then we'll apply this technique, one or sometimes two words। सही है, तो suspects होगा, इससे ज्यादा नहीं। So that's how things work in practice। अच्छा, that's where I'm going to stop right now, unless you have some questions। Actually, no. If you don't have any questions, then we'll look at some of the other issues with spelling corrections। Spelling errors। सही है, इसमें एक है कि why not auto correct। सही, ऑटो करेक्शन का मतलब है कि आपने डिटेक्ट किया, आप टाइप कर रहे हैं, जैसे ना मैं मैसेज टाइप कर रहा हूँ, उसने कहा छोड़े मैं ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता हूँ। इट्स वेरी एनोइंग। मैंने तो ऑटो करेक्ट को ऑफ किया हुआ है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है फोन में, लेकिन गूगल इज नाउ डूइंग इट वेरी वेरी वेल। व्हेन यू टाइपिंग ईमेल्स, ऑटोमेटिकली आपका वो करेक्ट कर देता है, एंड यू कैन टर्न इट ऑफ, लेकिन इट्स सो गुड कि मुझे अभी तक टर्न ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। The thing with this is you have to have very high confidence, यानी आपके मॉडल का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो वो जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है, इट शुड बी वेरी हाई एंड सेज के नाउ आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इट्स एग्जैक्टली दिस आंसर एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। इफ यू नॉट दैट कॉन्फिडेंट, देन गिव अ सिंगल बेस्ट करेक्शन। आप सजेस्ट करते हैं लेकिन यू गिव इट लिटिल लेस, एज यू डोंट करेक्ट। आप कहते हैं कि सजेशन है कि मुझे लग रहा है कि ये एरर हो गया, लेकिन आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं उसे खुद ही करेक्ट कर दूं। इफ यू आर इवन लेस कॉन्फिडेंट and you have very little confidence, then you give a list of candidates। सही है, very little confidence, and that not too proactively, बल्कि अगर वो पूछे
तो आप कहेंगे हाँ शायद आप ये करने की कोशिश कर रहे थे. ठीक. So these are some issues. There are some other issues as well. So I'll take questions if you have any.